Okay. So now let's say start. Now we'll take few more problems on KVL and KCL, and then we'll jump to our next topic. Okay. So now we'll start. Okay. So we want to solve this problem. Okay. So the what is the problem? Problem is we want to find the potential difference between point X and Y. So here is point X and here is point Y. So our target is to find out V X comma Y or XY. We want to find the potential difference between terminal X and Y. Okay. So the voltage at X, let me take as Vx, and voltage at Y, let me take as Vy. So I want to find out Vxy, which can be written as Vx minus Vy. Voltage at X terminal and voltage at Y terminal. See, our target is to calculate voltage drop between these two terminals, X and Y. So if we will able to apply one KVL in such a way, like this, see, like this, go like this, go like this, go there, and we have to go around it. Around it means from Y to X. So if we will redraw this circuit, just considering terminal X over here, just considering terminal Y over here. Now what you have to do? You have to go like this. You have to go like this. This is your 3 ohm resistance. Now there is a battery. Now we are going from here to here. So now we'll get one another component element, you can say. That is your 4-volt battery. Then there is another element. Now we'll go from here, then again over here. Then we'll be having another element. Let me make it over here. You can make it anywhere. Okay. This is your 3 ohm. And then we have to connect this terminal. Okay. Our target is to calculate voltage drop between these two terminals. So let me assume that voltage drop across these two terminals is some battery, some voltage, and that is your Vx1. ये समझ में आ रहा है क्या? ये क्या किया मैंने? या अगर चलो बैटरी आपको कंफ्यूज कर रही है कि ये बैटरी कहाँ से आ गया, so make it open and just name the voltage. Okay, let me erase it if it is giving you some confusion. Okay, you can take like a knot, and we can assume that voltage drop across these two terminals is Vx1, and our target is to calculate this voltage. Okay, and let's write down the polarities as well, as they have in the question they have given even. Okay, so as you can see, if we are going from the current in this branch is showing you like this, and then the polarity will be positive over here, negative over here. So let's draw the polarities as well. And here the polarities are plus 2 minus. Okay, so here is plus, and here is minus. Okay, so can you tell me what will be the voltage across this 3 ohm resistance? Can you tell me the voltage across this 3 ohm voltage, 3 ohm resistance? Voltage across this 3 ohm. This 3 ohm is this 3 ohm. So what will be voltage across this 3 ohm resistance? So for now we are taking this as Vxy. So we have voltage over here. We have now we need to find the values of I1 and I2. We want to find the because here we want to the value. Okay, so what will be I1? यहाँ से I1 तो easily पता है. यहाँ पे क्या 2 ohm बैटरी लगा हुआ है, केवल इतना सा सर्किट है. What will be your I1? Okay, even they have solved it. What is your I1? 2 divided by 5. बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, similarly I2, 4 divided by 8. Any doubt on it? So we have got the values of I1 and I2. Once we have the values of I1 and I2, it means we are having the voltage across these two terms. We are having voltage on this resistor, voltage on this resistor. Now the rest is we have to apply KVL. बस केवल एक चीज ध्यान देना है
इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये आपको दिखने में एक सा ही लूप लग रहा है, फिर ये आप कह दो कि सर इसमें करंट अलग क्यों है, इसमें करंट अलग क्यों है, बिकॉज दिस इज नॉट अ कंप्लीट क्लोज्ड पाथ। आर यू गेटिंग इट? अगर ये शॉर्ट होता फिर भी पॉसिबिलिटी है कि इस ब्रांच में कुछ अदर अलग करंट हो, इस ब्रांच में कुछ अलग करंट हो, इफ देयर इज सम अदर कनेक्शंस विद दिस, बिकॉज ये जो हमने बनाया है ये क्या है, ये हमने एक पार्ट बनाया है सर्किट का, ये पूरा कंप्लीट सर्किट नहीं है। ओके, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द सर्किट, नॉट कंप्लीट सर्किट। दैट इज व्हाई ऑन अ सिंगल लूप on different branches current is different. Okay, so be clear with it. Okay, now let's apply KVL on this loop. Okay, so now if we'll apply KVL on this loop, okay, let me assume that this is your positive terminal, this is negative, because we are considering Vx minus y. That's our consideration only. So it means we are considering that this terminal is having high potential and this terminal is having low potential. Now we can easily apply KVL. Okay, who is going to tell me the equation of KVL? Okay, so you are writing the 3i1, you are going from low potential to high potential, you have written plus 3i1. Now here is this element. Okay, so before going further, write this value, right? This is low potential to high potential plus 4 as a voltage. Now high potential to low potential minus 3i2 and we're going from low potential to high potential plus Vx plus Vxy and equal to 0. Now equal to 0. Now our target is to calculate this value. Okay, so you can write this as Vxy is equal to minus 4 minus 3 into I1 and plus 3 into I2. Barabar hai? Now just put the value of I1 and I2. So you'll get minus 4 minus 3 into 0.4 plus 3 into 0.5. Now tell me the answer. minus 3.7. Minus 3. Minus 3.7. That's your final answer. It is similar to your previous problem. Similar, not exactly same, but similar problem. Okay. Again, we need to find the voltage across A and B. So we have A terminal over here, B terminal over here. Okay, so VAB is equal to kitna raha hai? 17 point. Raise your hand if you got the answer 17.65. See, we are having this circuit. First of all, we have to know the target. Target is to calculate voltage across these two terminals. So first of all, you can redraw the circuit as of your requirement. We want to have this terminal as A, we want to have another terminal as B. Okay, and let's redraw it. If we'll redraw it, we'll get this element. Okay, let me take this as over here, but write the polarities as well. Polarities in this loop, you can see the current is flowing anti-clockwise. If current is flowing anti-clockwise, then the polarity on this terminal is going to be this as positive and this as negative, then this will be positive and this will be negative. So this is going to be plus minus. From it is plus, and the value, okay, let me write the voltage directly. The value of voltage is going to be 5 times I1. So let's write 5 I1 is going to be the voltage at this term. Okay, then when we are going from A to B, you can see after this we will be having this voltage source. So we'll write this voltage source over here. Draw this voltage source. Okay, having positive polarity towards A. Okay, then there is another element. Okay, let me write this as 12 volt, 12 ohm. What current will be there? अगर आपका ये ब्रांच यहां से ओपन है, इसका मतलब इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा. दिस इज अ ओपन ब्रांच. It is connecting two circuits with a resistance which will be having no current.
जब तक आपका क्लोज्ड पाथ नहीं होता। सर कभी भी किसी भी लूप में करंट तभी फ्लो होता है जब वो क्लोज्ड होता है। अभी ये क्या है, ये ओपन सर्किट है, देखो यहाँ पे ये ओपन है, केवल एक ही पाथ है कि भी कोई से भी देखो ऐसे सर्किट कनेक्टेड हो, कोई से भी एक सर्किट है यहाँ पे, इस सर्किट में अगर केवल एक ब्रांच लगा है, एक ओपन है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो ही नहीं सकता है। इट इज सिमिलर टू लाइक दैट। यहाँ पे क्या था, एक ये सर्किट है, एक लूप है, इसमें ये एक ब्रांच कनेक्टेड है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक सर्किट है, उसमें ये वाला ब्रांच कनेक्टेड है, लेकिन इसको आपस में क्लोज करने वाला, अगर यहाँ पे एक रजिस्टर होता, या यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट होता, या यहाँ पे कोई भी एलिमेंट होता, in that case only there will be some current, unless this current is going to be zero. This is the concept of open circuit. अगर ओपन सर्किट है तो आपका क्या है, ये करंट फ्लो नहीं होगा। करंट अगर देखो कोई सा भी पाथ होता है, चलो मैं एक छोटा सा सर्किट लेके आपको जो एक एग्जांपल भी लिया था मैंने, कि अगर ये सर्किट कंप्लीट है तभी करंट फ्लो होगा, इस सर्किट में तभी करंट फ्लो होगा जब ये सर्किट कंप्लीट है, क्लोज्ड है। अगर क्लोज्ड नहीं है तो करंट फ्लो नहीं हो सकता। यानी कि जो करंट यहां से जाएगा, अगर मान लो अगर कोई करंट जा रहा है, तो इसको वापस आने के लिए भी तो कोई इसको कंप्लीट पाथ चाहिए ना करंट फ्लो होने के लिए। आर यू गेटिंग मी और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. कंप्लीट पाथ Yes, चाहिए sir. होता है। सो इट विल बिहेव लाइक अ ओपन, ये ऐसे बिहेव होगा, देखो ऐसा ऐसा समझ में आएगा इसको। एक यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, एक बैटरी लगा हुआ है, और इसके आगे कोई भी सर्किट लगा है, इसके आगे कोई भी सर्किट लगा है, एक सर्किट इधर है, एक सर्किट इधर है, ये ठीक है, ये आपके कंप्लीट सर्किट है, ये आपके कंप्लीट सर्किट है, ये भी कंप्लीट सर्किट है। लेकिन इस ब्रांच पे करंट कहां से आएगा, इसका कोई क्लोज्ड पाथ नहीं है ना। ये एक तरीके से इस कंपोनेंट को ये ऐसा बिहेव करेगा कि जैसे ये क्या है, डॉट है, ये भी एक डॉट है, लेकिन इसको कोई कंप्लीट पाथ नहीं मिल रहा करंट फ्लो होने के लिए। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी नो करंट। करंट अक्रॉस दिस 12 ohm resistance will be zero. Current will be zero on this resistor. So can we proceed with it? Okay. So now there will be no current. It means this is going to be multiplied with zero if we're talking about voltage. Okay. So this is your 5 volt. This is going to be 12 into 0. Now there is this element. Again, you can see the polarities. Current is flowing in clockwise direction. So it means this terminal will be positive and this terminal will be negative. So you can write it as, okay, you can write it as, okay, so this is your positive, and we are going from positive to negative, and that is going to be 4 into I2. Okay, and you can assume this as, okay, you can make it open. Okay, and with voltage VAB, कि अगर हम यहां से जाएंगे तो हमें ये भी रजिस्टर कंसीडर करना पड़ेगा। Means you can make this circuit or you can take, okay, let me make another circuit as well. Not only 6, देखो अगर आपने ये वाला पाथ चूज किया तो you have to take 2 component, this as well as this. Yes, sir, you can subtract 15 volt and then add 6 I2. Yes. So you have to write minus 15, then you can write this as, this is high potential and this is low potential. So you will write plus 6 I2. Yes. Okay, understood? So you can, that's the way, like our target is to reach from this terminal to this terminal. You can go like this path, it up to you. You can reach to this B from any path. You can go like this, you can go like this, you can go like this, any path. It up to you. Okay, now let's develop the KVL equation. Okay, so let's apply KVL. Let's start from A to B, will go in this direction. Okay, it's up to you. You can go clockwise or you can go anti-clockwise. It's up to you. Okay, so now let's go anti-clockwise. So we'll get minus 5 I1. Then we'll get minus 5. Very good. Minus 5. Minus What? 15. Minus 15. Okay, you're taking this path. Okay, tell me according to this path, because we have taken this circuit. Minus 4 I2, and then we'll get low potential to it plus VAB. Plus VAB equal to 0. So from here we'll get VAB is equal to
5i1 plus 5 and plus 4i2. So now we are having the values of i1 and i2. The value of i1 will be equal to 20 by 15 or 4 by 3. I2 will be 15 by 10. Okay, so 1.5. Okay, so you just need to put the values and tell me the final answer. VA, what will be your VA? 17.65. 17.6. 15.65. Source transformation. How many types of sources are there? How many types of sources are there? 2. Practical voltage source and practical current source. Practical voltage source में एक रेजिस्टेंस कहाँ पे आता है? सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में. करंट सोर्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कहाँ पे आता है? पैरेलल में या सीरीज में? पैरेलल. ये पॉइंट सभी को क्लियर है? अभी देखो ये डिफिनीशन से ही आपको क्लियर. सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. डिफिनीशन क्लियर है? Voltage source. What is source transformation? Source transformation is like we can change or convert voltage source to current source, or we can convert current source to voltage source. अरे वो डायग्राम से क्लियर दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से. ये वोल्टेज सोर्स है, इससे हम करंट सोर्स बना सकते हैं. ये करंट सोर्स है, इससे हम वोल्टेज सोर्स बना सकते हैं. That's it. That is your source transformation. Okay. Yes, sir. Okay. Now let me listen carefully. See, हमारे पास अगर एक वोल्टेज सोर्स है, अगर हमें इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, अभी मैं बताऊंगा आगे चल के कि क्यों करना होता है. ओके, पहले ये देखते हैं कैसे करते हैं. ये वोल्टेज सोर्स है, इसको मुझे करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे कि देखो, सबसे पहले क्या करो, इसको शॉर्ट कर दो. जस्ट थिंक कि ये शॉर्ट है. अगर शॉर्ट होगा तो करंट कितना फ्लो होगा इस सर्किट में? V by R करंट फ्लो होगा. सो यानी कि अगर मैं इसका करंट सोर्स बनाऊंगा तो क्या होगा? जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा? V by R करंट होगा. V by R करंट होगा. और ध्यान से देखना, करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है? अगर मैं इसको वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं तो करंट का डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है. तो जो नया सोर्स बनेगा, जो वोल्टेज सोर्स को मैं करंट सोर्स में कन्वर्ट करूंगा, तो जो नया सोर्स बनेगा, इट विल बी हैविंग करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन. ऊपर इधर इस डायरेक्शन में होगा करंट. जिस डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में यहाँ पे करंट फ्लो होना चाहिए. ये समझ में आया नहीं आया? yes, यानी कि जब मैं वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करूंगा तो वैल्यू कितना होगा? V by R. और डायरेक्शन कौन होगी? जो इसका पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, जहां पे ये पॉजिटिव टर्न, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ यहाँ पे करंट दिखाई देगा. ये समझ में आ गया? अब ये जो रेजिस्टेंस, एंड ये हमें पता है करंट सोर्स में जो रेजिस्टेंस आता है वो कहां पे आता है हमेशा? तो अगर मुझे करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि जो रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में लगा था उसको किस में लगा देंगे? पैरेलल में लगा देंगे. यानी कि अगर मुझे वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना, पहले क्या करूंगा? मैं करंट फाइंड करूंगा शॉर्ट करके. कितना करंट फ्लो होगा? करंट होगा V by R. करंट का वैल्यू मिल जाएगा और उसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस सीरीज में लगा था उसको मैं पैरेलल में लगा दूंगा. दैट्स इट. हो गया. वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स में कन्वर्ट हो गया. अगर मुझे करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, क्या करूंगा? पहले इसमें वोल्टेज फाइंड कर लो. वोल्टेज देखो, यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है? चलो मान लो अभी I फ्लो हो रहा है. यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है? I फ्लो हो रहा है. तो अगर I है तो वोल्टेज कितना होगा? मुझे वोल्टेज में कन्वर्ट करना है अभी. वोल्टेज सोर्स क्या होगा? करंट. वोल्टेज कितना होगा अगर ये करंट I है? IR बोले ना, I into R. IR वोल्टेज हो जाएगा, I into R होगा वैल्यू. पोलैरिटी कहाँ होगी? ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये टर्मिनल प्लस होगा या ये टर्मिनल प्लस होगा? कौन सा? अपवर्ड और डाउनवर्ड. प्लस कहाँ पे मिलेगा? तो डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड मिलेगा. कहाँ पे मिलेगा? अपवर्ड विल बी पॉजिटिव और डाउनवर्ड विल बी नेगेटिव. सो विल गेट दिस टर्मिनल एज पॉजिटिव एंड दिस एज नेगेटिव. ये आपको मिल गया. IR इज अ वोल्टेज, और जो रेजिस्टेंस आएगा वो कहाँ पे आएगा? इसमें रेजिस्टेंस आता है. हो गया, सॉल्व हो गया. ये आपका क्या है? करंट सोर्स था, इसको हमने वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया. यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया था. करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यानी कि हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं. वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, चलिए ये कैसे कर सकते हैं, ये हो गया ये क्वेश्चन के. अब ये क्वेश्चन है कि क्यों करना है ये?
वोल्टेज मतलब सोर्स को, ठीक है हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, उसको करंट सोर्स में कर सकते हैं, लेकिन क्यों करना है? क्योंकि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब हमारे पास बड़ा सा सर्किट होता है, तो बहुत बार ऐसे हुआ कि अगर एक सोर्स ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो हमारा जो सर्किट है वो इजी हो जाएगा। जो रजिस्टर्स है, क्योंकि देखो यहाँ पे रजिस्टर जो सीरीज में होता है वो पैरेलल में चला जाता है, जो सीरीज में है वो पैरेलल में चला जाता है, जो पैरेलल में है वो सीरीज में आ जाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस रजिस्टर मूवमेंट हमारा सर्किट क्या होगा, जो हमारे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस हैं वो इजीली बनने लग जाएंगे। ओके, और उससे हमारा जो सर्किट हो जाएगा वो इजी सॉल्व हो जाएगा। ओके, लेट मी टेक द एग्जांपल एंड मेक इट क्लियर। चलिए एग्जांपल लेकर क्लियर करते हैं इसको। ओके, so let's take this example. Okay, the problem is convert the given circuit into a single current source में बनाना है और पैरेलल में उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ओके, ये क्वेश्चन है कि हमें इसका एक पैरेलल करंट सोर्स बनाना है। अभी ये क्या है आपका, ये जो दिया है वो आपको क्या दिया है, वोल्टेज सोर्स गिवन है। ये आपका क्या वोल्टेज सोर्स गिवन है, यहाँ पे भी वोल्टेज सोर्स गिवन है। क्या करेंगे, पहले इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। ओके, चलिए करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। ओके, करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, इसको कैसे करेंगे, ये वोल्टेज सोर्स है, इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना। कैन यू टेल मी द आंसर? द वैल्यू ऑफ करंट इज गोइंग टू बी 2 एम्पियर। डायरेक्शन अपवर्ड और डाउनवर्ड? अपवर्ड, वैल्यू कितना है 2 एम्पियर। और ये जो 5 ओम रेजिस्टेंस है ये कहां पे जाएगा, सीरीज में या पैरेलल में? ये पैरेलल में आ जाएगा इसके। वेरी गुड, ओके, यानी कि ये वाला जो लाइन था ये क्लियर हो गया। ये आपका क्या था, वोल्टेज सोर्स था, इसको हमने करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया, ये आपका 5 है। ओके, अभी चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे करंट कितना आएगा, 2 डायरेक्शन अपवर्ड upwards, रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा, सीरीज में या पैरेलल में? parallel, पैरेलल में। हो गया, खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलो, यानी कि जो आपका वोल्टेज सोर्सेस थे उसको हमने करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। Now, before solving it further, let me just give you some basic laws, or you can say concepts of voltage source and current source. Okay, voltage source में अगर दो बैटरीज सीरीज में कनेक्टेड है, दो वोल्टेज अगर सीरीज में कनेक्टेड है, ये सपोज कर लो ये इसका वैल्यू V1 है और इसका वैल्यू V2 है, अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट फाइंड करना है, व्हाट विल बी दैट वैल्यू? अरे केवीएल लगा दो यहाँ पे। देखो यहाँ पे अगर मुझे इन दोनों का वोल्टेज निकालना है तो ये वोल्टेज को क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज ऐड हो जाएगा। समझ में आ गया या नहीं आ गया? ओके, चलिए अगर मुझे यहाँ पे एक बैटरी ऐसी लगी हुई है, एक उल्टी बैटरी लगी हुई है। ओके, इसका वैल्यू V1 है, इसका वैल्यू V2 है। अब मुझे बताइएगा आंसर, V2 माइनस V1। अब देखो ध्यान से क्यों ऐसा हो रहा है, देखो हमने V2 का जो पोलैरिटी है वो चेंज नहीं किया है। हमें जो इक्विवेलेंट में हम क्या ले रहे हैं कि आपका जो नीचे वाला टर्मिनल है, दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल। तो देखो हमने जो पोलैरिटी है वो किसकी, V1 की चेंज की है। अगर V1 की पोलैरिटी चेंज की है इसलिए वो माइनस हो गया, माइनस V1 हो गया। ये जो आपका V2 है उसका हमने पोलैरिटी चेंज नहीं किया, V2 इज एज इट इज, ये जैसे का तैसा है। इसके लिए V2 तो हमारा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन हमने V1 का पोलैरिटी चेंज किया है, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, माइनस V1 हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? ओके, चलिए मैं वापस से इसको अच्छे से समझाता हूँ, क्लियर करता हूँ। ओके, चलिए बिफोर गोइंग टू दिस पॉइंट, मैंने एक स्टेप छोड़ दिया ना, इसके लिए आप कंफ्यूज हो गए। ओके, ये है आपके पास सर्किट। अभी अगर मैंने ये इसको जो है ये इक्विवेलेंट बनाया, अभी बताइए यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, V1 माइनस V1। इसमें किसी को डाउट है V1 माइनस V2 में? सी इट्स एग्जैक्टली सेम। देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारा जो V1 है और ये जो इक्विवेलेंट है इसका पोलैरिटी सेम है, इसके लिए V1 पॉजिटिव है। जो इक्विवेलेंट और जो V1 है उसका पोलैरिटी सेम है, यानी कि V1 में हमने कोई चेंजेस नहीं किए, लेकिन V2 का जो पोलैरिटी था वो हमने चेंज कर दिया। देखो यहाँ पे दोनों का सेम पोलैरिटी था इसलिए दोनों ऐड हो गए थे, यहाँ पे दोनों का डिफरेंट पोलैरिटी। तो अगर मैं इक्विवेलेंट में एज अ V1 पोलैरिटी एज अ V1 लूंगा तो V1 एज इट इज रहेगा, लेकिन आपका V2 क्या हो जाएगा, उसका जो है पोलैरिटी चूंकि चेंज हो गया है, पोलैरिटी चेंज हो गया है। पोलैरिटी पहले नेगेटिव ऊपर था, पॉजिटिव नीचे था, अभी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, पॉजिटिव ऊपर कंसीडर कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस V2 हो जाएगा। और चलो एक स्टेप और इंक्रीज करके मैं समझाता हूँ,
और डिटेल में जाते हैं। देखो ये आपका V1 है। अभी देखो मैं केवल इसका पोलैरिटी चेंज कर रहा हूं, यहीं पे मैं इसका पोलैरिटी चेंज कर रहा हूं। जब भी अगर आप पोलैरिटी चेंज करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। ये -V2 हो गया, ये तो समझ में आया ना। ये V1 था, V1 में अभी मैंने केवल इसका पोलैरिटी चेंज किया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -V2 हो जाएगा। सी यहाँ पे जो पोलैरिटी है वो चेंज हो गया ना, यहाँ पे इसका पोलैरिटी पहले पॉजिटिव नीचे था, अभी मैंने पॉजिटिव ऊपर कर दिया पोलैरिटी, तो इसके लिए वैल्यू माइनस हो गया। अभी केवल देखो ये और ये सर्किट सेम हो गया है, यानी क्या इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करना क्या हो जाएगा, V1 -V2 हो जाएगा। सो दिस इज योर V1 एंड दिस इज योर V2। अभी मुझे नया इक्विवेलेंट कैसा चाहिए जिसमें पॉजिटिव पोलैरिटी नीचे हो और नेगेटिव पोलैरिटी ऊपर हो, ऐसा इक्विवेलेंट में चाहिए मुझे। तो क्या वैल्यू होगा अभी, V2 -V1। अभी V2 क्यों पॉजिटिव हुआ, क्योंकि V2 का पोलैरिटी सेम है, V1 का चेंज हुआ, इसके लिए V1 माइनस हो गया। अभी क्लियर है सभी को? ओके, सो नाउ लेट मी टेक अनदर केस। अगर सपोज हमारे पास एक बैटरी ऐसी लगी हुई है और इसके साथ में एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, व्हाट विल बी इक्विवेलेंट ऑफ इट। ये है V और ये है R, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? चलिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, इसका इक्विवेलेंट ये हो जाएगा सेम। ये हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, एक तरीके से रिडंडेंट है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पे भी है, यानी कि इस रेजिस्टेंस का सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वी कैन रिमूव दिस रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस सर्किट। ये समझ में आ गया क्या? सी अगर मुझे ये बैटरी को इसी सर्किट में कनेक्ट करना है, इसी सर्किट में कनेक्ट करना है, चलो मुझे ये सर्किट है, इस सर्किट में कनेक्ट करना है। ओके, तो क्या करूंगा मैं, इस सर्किट को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है, तो क्या ये बैटरी, यानी कि मुझे क्या चाहिए, इस टर्मिनल पे कुछ बैटरी का वोल्टेज चाहिए, तो ये हमारे वोल्टेज यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये रजिस्टर का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये रजिस्टर क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। यही अगर सीरीज में कनेक्टेड होता तो फर्क पड़ता, लेकिन अगर रजिस्टर क्या पैरेलल में कनेक्टेड है तो जो टर्मिनल का वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे है और वही वोल्टेज यहाँ पे, तो मुझे तो यहाँ पे वोल्टेज चाहिए ना बैटरी का मतलब। तो यानी कि ये रजिस्टर का इस सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखो ये जब हम बात कर रहे हैं सर्किट की तब हम इसको हटा सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे सोर्स की, अगर हमें सोर्स की एनालिसिस करना है कि सोर्स में कितना, यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है या यहाँ पे कितना पावर यहाँ से निकल रहा है, इन दैट केस हम इसको नहीं हटा सकते। करंट फ्लो होगा, लेकिन इसका अगर हम अगर सर्किट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो सर्किट में तो हमें वोल्टेज बस चाहिए। सर्किट से हमें, अगर हम इसके बाहर की बात करेंगे तो इसके बाहर इस रेजिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे करंट तो फ्लो हो रहा है ना इसमें। हाँ, समझ में आ गया? इसके हाँ। बाहर जो यहाँ पे करंट है, यहाँ पे जो करंट है, जो सर्किट में करंट होगा वो हमें बैटरी की वजह से मिलेगा, बैटरी के वोल्टेज की वजह से मिलेगा। हमें यहाँ पे क्या करंट है उससे मतलब नहीं होता है। इसके लिए जब हम सर्किट की एनालिसिस करते हैं, इन दैट केस वी कैन रिमूव दिस रेजिस्टेंस, बट अगर हम सोर्स की एनालिसिस करते हैं इन दैट केस वी कैन नॉट रिमूव दिस रेजिस्टेंस। थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड है, आपके लेवल से बाहर है, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है यू कैन स्किप इट। ओके, चलिए अब बात करते हैं करंट सोर्सेस की। सपोज वी आर हैविंग टू करंट्स flowing, current I1 in this direction, current I2 flowing in this direction, parallel connection is there, I1 and I2, and if you want to make it equivalent, what will be the value? Equivalent current source का value क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, I1 plus I2 मिलेगा ना, तो we'll write it as एक नया current source, यानी एक तरीके से ये current source है जो हमें वैल्यू कितना दे रहा है, I1 plus I2 दे रहा है। हो गया काम खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आया? सिमिलरली अभी चलो जैसे हमने वोल्टेज सोर्सेज में कुछ केसेस बनाए थे, इसमें भी कुछ बना के देख लेते हैं। अभी बताओ मुझे, अगर इक्विवेलेंट पे यहाँ पे डाउनवर्ड में मुझे एक करंट सोर्स है, डाउनवर्ड, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू? गुड, I2 minus I1। देखो I2 का पोलैरिटी सेम है, डायरेक्शन सेम है, I1 का चेंज हो गया इसलिए माइनस I1 हो गया। अगर मुझे इसमें से ही करंट अपवर्ड चाहिए तो वैल्यू क्या हो जाएगा? I1 minus I2।
ओके फिर चलो इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस में बता देता हूँ, समझ में आए या ना आए फिर भी समझ लो। समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तब भी अच्छी बात है। ओके ये अगर आई है और इसके सीरीज में कोई रजिस्टर कनेक्टेड है, इन दैट केस वी कैन रिमूव दिस रजिस्टर, क्योंकि इस रजिस्टर का करंट पे यहाँ पे सोर्स पे यहाँ पे जो करंट है वो सेम ही रहने वाली है। सो इन दैट केस वी कैन रिमूव दिस रजिस्टर, और यू कैन से दिस रजिस्टर इज रिडंडेंट। बट अगेन द सेम जो हम पिछले केस में डिस्कशन कर रहे थे कि अगर हमें सोर्स का एनालिसिस, बिकॉज यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप तो होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा और उसकी वजह से इस सोर्स के पावर पे असर करेगा, सोर्स का पे जो पावर का लॉस होगा या जो पावर ये प्रोवाइड करेगा उस पे डिफरेंट आएगा, जो लॉस होगा उस पे डिफरेंट चेंजेस आएंगे, लेकिन सर्किट पे कोई चेंजेस नहीं पड़ेगा। सो यू कैन रिमूव दिस रेजिस्टेंस if you are solving the circuit. Okay, so just keep this in mind कि अगर ऐसा केस आता है तो हम रजिस्टर को हटा सकते हैं। Come back to our problem. Okay, our problem is this one. Now see, now देखो ध्यान से, ये दोनों रजिस्टर्स क्या है, करंट सोर्स किसमें कनेक्टेड है, इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं, एक करंट सोर्स, क्या होगा वैल्यू 4 I1 plus I2. 4 प्लस I2 4, और ये रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, इनका जो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, एक रजिस्टर एंड वैल्यू 5 into 4 divided by 5 plus 4 9 हो गया, आंसर सॉल्व हो गया, बन गया। ये एक करंट सोर्स बनाना था, सिंगल करंट सोर्स बन गया। दो रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, दो रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, क्या होता है फॉर्मूला, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, दो रजिस्टर्स अगर पैरेलल में R1 into R2 अपॉन R1 plus R2। क्या फाइंड करना है, वोल्टेज सोर्स इन अ सीरीज रजिस्टर। सी अरे बाबा देखो, ये वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करो, चलिए डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल क्या अपवर्ड है, तो करंट का डायरेक्शन अपवर्ड, वैल्यू कितना होगा 15/8। रेजिस्टेंस कहां पे आ जाएगा, 8 ओम पैरेलल में से। अरे एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, मैं तो ये स्किप कराने वाला था क्योंकि इतना आसान सा है। 10 divided by 4 रेजिस्टेंस विल कम इन पैरेलल, दैट इज गोइंग टू बी 4। ये आपका हो गया इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट बनाओगे क्या मिल जाएगा, the value of current source and the resistance will come in parallel, the resistance will become 32/12, parallel में connection है 32/12 हो गया, R1 into R2 upon R1 plus R2, और ये कितना हो जाएगा 15/8 plus 10/4, ये ऐसे चीज लिख दो, 15/8 plus कितना है 10/4। ओके सो अभी क्या करना है, इसको वोल्टेज करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। ये वोल्टेज सोर्स है, करंट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होता, वो तो सेम रहता है, 32/12 ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, दिस इनटू दिस, I into R, I ये है और R ये, देखो 11.68 आ गया। ओके सो आई होप एवरीवन गॉट द आंसर। ओके सो दिस इज द प्रॉब्लम। नाउ लेट्स टेक दिस प्रॉब्लम एंड दिस विल बी योर लास्ट प्रॉब्लम फॉर योर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशंस। Okay, so now the question is find power delivered by 50 volt source in this circuit. हमें क्या करना है, इस सोर्स से कितना पावर डिलीवर हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। पावर क्या होता है, V into I, P equal to क्या होता है, V into I, या फिर अभी V को हम क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं, तो हम इसको क्या लिख देंगे, या तो इसको हम I square R भी लिख सकते हैं। I को क्या लिख सकते हैं हम, I को लिख सकते हैं V/R, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यानी V²/R। यानी पावर के तीन फॉर्मूलाज होते हैं, पावर के तीन फॉर्मूलाज होते हैं, V into I, या फिर I²R, या फिर V²R, V²/R। समझ में आ गया, पावर के तीन फॉर्मूलाज हैं। यस सर। तो यानी अगर मुझे फाइंड करना पावर डिलीवर्ड बाय दिस सोर्स, यानी कि ये जो सोर्स है कितनी पावर डिलीवर कर रहा है अगर निकालना है, तो यानी मुझे क्या निकालना है, इस ब्रांच पे वोल्टेज तो पता है मुझे, इस सोर्स का वोल्टेज तो पता है, अगर मैं यहाँ पे करंट फाइंड कर लूं तो यानी पावर मिल जाएगा। पावर इक्वल टू क्या, वोल्टेज इनटू करंट। तो अगर यहाँ पे करंट निकाल लूंगा तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, isn't it? See how we'll do it, how we can solve this. See अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है और इसके सीरीज में एक, ये पैरेलल में एक रजिस्टर कनेक्टेड है, यहाँ पे एक करंट सोर्स कनेक्टेड है। तो अगर मैं इसको एक सिंपलीफाइड सर्किट बनाने की कोशिश करूं तो क्या बना सकता हूँ, इसको ऐसे बना सकते हैं क्या,
देखो एक यहाँ पे बैटरी एज इट इज आप 50 वोल्ट ले लो, रेजिस्टेंस अभी आप एज इट इज रख दो, और यहाँ पे एक तरीके से देखो तो ये आपका एक करंट सोर्स कनेक्टेड है यहाँ पे, और इसके पैरेलल में ये रजिस्टर कनेक्टेड है 2 ओम का, ये है आपका 10 और ये है आपका 2, और यहाँ पे आपका क्या है, एक क्या ये वोल्टेज सोर्स है, इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको अगर हम करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे कैसा बनेगा, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड, और जो रजिस्टर सीरीज में था वो कहाँ पे आ जाएगा, वो पैरेलल में आ जाएगा विद वैल्यू 3, ये वैल्यू 3 है, और इसका करंट का वैल्यू कितना होगा 10/3, बराबर है। तो अब देखो ध्यान से, ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में, और ये दोनों भी पैरेलल में, तो अभी इसका हम फर्दर सिंपलीफाइड डायग्राम बना सकते हैं। देखो इसको चेंज मत करना, क्योंकि हमें क्या करना है, इससे ही आंसर फाइंड करना है, तो ये आपका एलिमिनेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इसको आगे ये हमें चाहिए 50 वोल्ट सोर्स चाहिए, तो इसको मत हटाओ, पीछे से सॉल्व करो। ओके, तो इसको एज इट इज बना के रखो, क्योंकि हमें इसके अक्रॉस ही करंट निकालना है, तो इसको एज इट इज रखेंगे हम। ओके, नाउ विल मेक these two as a one current source, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 plus 10/3, 10 plus 10/3 कितना हो गया 40/3, 40/3 ये 40/3 हो गया, और ये दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 into R2 upon R1 plus R2, R1 into R2 means 6/5, बराबर है। yes sir ओके, सो नाउ sir. ये आपका कितना था, ये 5 ओम था, ये 5। अभी क्या करेंगे, अभी इस वोल्टेज सोर्स, इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, चलिए करते हैं। ये आपका क्या है, यहाँ पे एक बैटरी है, ये आपका 5 ओम रेजिस्टेंस है। ओके, अभी हमें केवल इसको एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना, वोल्टेज सोर्स यानी कि पॉजिटिव पोलैरिटी कहाँ जाएगी, अपवर्ड जाएगी। हो गया, सॉल्व हो गया भाई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये तो आपका एज इट इज है 6/5 आ जाएगा, और वोल्टेज कितना हो जाएगा I into R, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए, मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ये 16 आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लीजिए। यस सर, Yes, sir. ओके, सो ये आपका 50 है, ये आपका 5 है, और ये देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया भाई। हमें करंट निकालना था ना, यहाँ से करंट का वैल्यू I, बस डायरेक्टली KVL लगा दो इसमें। मान लो करंट I है, यहाँ से अभी स्टार्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 50 minus 5I minus 1.2y 5I और minus 16. 16 0। देखो I का वैल्यू कितना आ गया, ये 16 यहाँ पे जाएगा, कितना बचेगा 34 इज इक्वल टू, ये कितना है 25 31/5, तो यहाँ पे 31/5 I का वैल्यू देखो निकल आया, I इज इक्वल टू कितना हो गया 34 into 5 divided by 31। ओके, फाइनल आंसर क्या था, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 34 into 5 upon 31 into कितना 50 हो गया आंसर। दिस इज योर आंसर। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज mesh analysis। our topic is mesh analysis। so सबसे पहले देखते हैं ये mesh होता क्या है, mesh होता क्या है। okay, mesh is also a sort of you can say loop or closed path। okay, अभी हमने देखा था ना loop और closed path का डिफिनेशन देखा था। closed path का मतलब क्या है कि ऐसा एक closed path है जिसमें बहुत सारे सर्किट में भी एलिमेंट्स लगे हैं, and we used to say this is your closed path। okay, there could be any elements between them or like that, so all these are called the closed path। so ये इस सर्किट में एक ये भी closed path है, इस सर्किट में एक ये भी closed path है, इस सर्किट में एक ये भी closed path, so there are multiple closed path। so ऐसे जो पाथ होते हैं इनको या तो हम closed path कहते हैं या फिर हम loop कहते हैं, loop या फिर closed path कहते हैं। अब mesh क्या होता है, mesh is also a closed path or a loop। mesh is also a closed path or a loop, but condition क्या है इसमें कि within that loop there should be no any other loop। इस loop के अंदर ये जो जैसे ये loop है, ये एक loop है, इस loop के अंदर कोई दूसरा loop नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे इस loop के अंदर एक ये भी loop है, एक ये भी loop है, एक ये भी loop है, so they are the loop only।
लेकिन अगर इस लूप या एक क्लोज पाथ के अंदर कोई दूसरा क्लोज पाथ है, सो दैट इज नॉट अ मैश। मैश क्या हो गया? मैश इज अ क्लोज पाथ और मैश इज अ लूप जिसके अंदर कोई दूसरा लूप नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड अ मैश। देखो यहाँ पे, अरे यहाँ पे लिखा भी तो है, मैश इज डिफाइंड एज अ लूप व्हिच डज नॉट कंटेन एनी अदर लूप विद इन इट। एक ऐसा लूप जिसके अंदर कोई दूसरा लूप नहीं है, वो क्या है आपका? वो मैश है। A mesh is defined as a loop which does not contain any other loops within it. अभी हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला टास्क क्या होगा? सबसे पहला टास्क, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ meshes in the circuit। हाँ, सबसे पहला टास्क क्या होगा कि हम क्या करेंगे? जितने भी सर्किट में मेश है वो फाइंड आउट करें। ओके, लेट मी, चलो यहाँ पे एक रफली में लिख देता हूं। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ meshes इन द सर्किट। कितने मेश हैं ऐसे, यानी कितने ऐसे लूप्स हैं जिसके अंदर कोई दूसरा लूप नहीं है। ऐसे लूप्स को हम कैसे मेश कहते हैं, तो हम पहले कितने मेश है वो फाइंड करें। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या है? वी विल फाइंड द नंबर ऑफ मेश। देन दूसरा स्टेप क्या होगा? हर एक मेश पे एक करंट असाइन करें। वी विल असाइन अ करंट ऑन ईच मेश। हर एक मेश के लिए एक करंट असाइन करें। हर एक मेश के लिए वी विल असाइन वन करंट। अब उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप क्या होगा? वी विल अप्लाई ओम्स लॉ। वी विल अप्लाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बिफोर अप्लाइंग KVL ऑन ईच मेश। क्या करना है एक्चुअली में? हमें क्या करना है, मैंने ये एक लाइन स्टेप खुद से ऐड कर दिया है। ओके, क्या करेंगे? सबसे पहले मेश, नंबर ऑफ मेश जो है हम फाइंड करेंगे। हर एक मेश को एक करंट असाइन करेंगे। उसके बाद एक्चुअली में हर एक मेश में हमें केवीएल लगाना होता है, लेकिन बिफोर अप्लाइंग केवीएल वी हैव टू अप्लाई ओम्स लॉ फॉर ईच मेश। हर एक मेश के लिए हम पहले ओम्स लॉ अप्लाई कर लेंगे, ताकि हमारा इक्वेशन, जब हम केवीएल इक्वेशन बनाए उसमें मिस्टेक ना हो, उसके लिए हम ओम्स लॉ अप्लाई कर लेंगे। ओम्स लॉ कौन सा वाला लॉ? करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो। एवरीवन, पोटेंशियल। ये वाला ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? हर एक टर्मिनल पे वोल्टेज मिल जाएगा विद पोलैरिटीज। उसके बाद हम इजीली केवीएल लगा देंगे, और जैसे ही केवीएल लगा देंगे क्या मिल जाएगा? हमें इक्वेशंस मिल जाएगा। और जितनी मेश है उतने केवीएल लगाना है, इसका मतलब उतनी इक्वेशंस मिल जाएंगी, यानी जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन, प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, सो सबसे पहले मुझे बताओ इस सर्किट में कितनी मेशेस है? 3. सभी को दिखाई दे रहा है 3। अब मुझे बताओ कितने लूप्स हैं? ओके ओके ओके, फॉरगेट इट। सी, अरे बाबा 6 इज करेक्ट। सी, देखो ये तो मैसेज हैं, एक इंडिविजुअल क्लोज्ड पाथ, इंडिविजुअल क्लोज्ड पाथ, इंडिविजुअल क्लोज्ड पाथ। एक देखो ये भी तो एक लूप है, क्लोज्ड पाथ है। क्लोज्ड पाथ इज नथिंग बट अ लूप। क्लोज्ड पाथ इज नथिंग बट अ लूप। तो यहाँ पे ये भी तो एक क्लोज्ड पाथ है। एक क्लोज्ड पाथ ये भी देखो ध्यान से, ये देखो ये वाला भी एक क्लोज्ड पाथ है, और एक ये वाला भी क्लोज्ड पाथ है। ये वाला भी क्लोज्ड पाथ, एंड एक ये वाला भी क्लोज्ड पाथ है। देखो ध्यान से, सी। सो अभी देखो यहाँ पे हमें फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया। नंबर ऑफ मेशेस 3 है, हर एक मेश में एक करंट असाइन कर दिया। नाउ अगेन हम क्या कर रहे हैं? ये करंट का डायरेक्शन क्या कर रहे हैं? एज्यूम कर रहे हैं ना। हम ये डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में एज्यूम कर सकते हैं। आपने क्लॉकवाइज लिया है, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। आप एक का क्लॉकवाइज दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन व्हाइल एज्यूमिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर है पॉइंट? जब हम डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन एज्यूम करते हैं तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हो। चलिए, फॉर इज ऑफ कैलकुलेशन फॉर नाउ वी विल टेक दिस एज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, चलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज्यूम कर लिया है। अभी देखो हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप। हर एक मेश पे क्या लगाना है? हर एक मेश पे क्या लगाना है? Ohm's law. ओम्स लॉ। एक्चुअली में केवीएल लगाना है। केवीएल लगाने से पहले हम ओम्स लॉ लगाएंगे, यानी कि हर एक मेश पे हमें केवीएल लगाना है, और जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे उससे पहले हम ओम्स लॉ लगा लेंगे। ओके, चलो मैं अभी जो इसमें दे रखा उसी के अकॉर्डिंग बताता हूँ, ठीक है? चलिए अभी हम चलो इस मेश पे केवीएल लगाना चाह रहे हैं।
इस मेश में केवीएल लगाना चाहिए। तो अभी देखो इस मेश में इस ब्रांच को ध्यान से देखो, इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो हो रहा है? I1 minus I2. That's the correct answer. See, even let me emphasize it more. See, यहाँ इस ब्रांच में ध्यान से देखना, ये कॉमन ब्रांच है, दो मेश का कॉमन ब्रांच है ये। इस मेश में ये वाला मेश जो कह रहा है अरे बाबा इसमें करंट डाउनवर्ड नीचे फ्लो हो रहा है, लेकिन ये वाला मेश कह रहा है कि नहीं करंट अपवर्ड फ्लो हो रहा है। यही ना, ये जो मेश है कह रहा है कि इस ब्रांच में करंट इज फ्लोइंग डाउनवर्ड, बट दिस मेश इज सेइंग करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड। So what we say your actual current? Again we get confused. हमें वापस से नहीं पता ना, तो ये हो सकता है कि चलो भाई हम अगेन हमें मानना पड़ेगा, अगर नहीं पता तो क्या करेंगे, हम कुछ मानेंगे, एज्यूम करेंगे। सो लेट्स एज्यूम कि इस ब्रांच में करंट डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? कि हमने एज्यूम कर लिया कि इस ब्रांच में करंट डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है। अगर डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है तो वैल्यू कितना होगा? I1 minus I2। देखो इस ब्रांच में I1 तो सेम है, I1 तो इसी डायरेक्शन में फ्लो रहा था, I2 को हमने डायरेक्शन चेंज किया ना, I2 का डायरेक्शन क्या था? अपवर्ड था, उसको हमने डाउनवर्ड एज्यूम किया। अगर डाउनवर्ड एज्यूम करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगा? I1 minus I2 हो जाएगा। लेकिन नहीं भाई, जो है कोई दूसरा सार्थक कह रहा है नहीं भाई ये जो डाउनवर्ड नहीं, मुझे तो अपवर्ड एज्यूम करना है। बिल्कुल कर सकते हैं ना, क्योंकि जो है यहाँ पे हमें वैल्यू I1 का वैल्यू क्या है, I2 का वैल्यू क्या हमें नहीं पता है, तो वैल्यू जब नहीं पता है तो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, तो ये अपवर्ड भी हो सकता है। अगर अपवर्ड एज्यूम किया तो वैल्यू क्या हो जाएगी? I2 minus I1। तो यानी अब हमारे हाथ में पावर आ गई कि अगर हमने इसको डाउनवर्ड एज्यूम किया तो वैल्यू कितनी होगी? I1 minus I2। अगर हमने इसको अपवर्ड एज्यूम किया तो वैल्यू कितनी होगी? माइनस I1। ये पॉइंट क्लियर है सभी को या नहीं है? मेश एनालिसिस का सबसे Yes, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। ये क्लियर है तो मेश एनालिसिस में कुछ भी नहीं। तो ये मेश एनालिसिस करना क्यों है? इसलिए करना है कि देखो अगर यही प्रॉब्लम मैं केवीएल केसीएल से सॉल्व करने जाऊंगा तो क्या होगा? चलिए जस्ट एज्यूम कि हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक ब्रांच पे करंट एज्यूम करना पड़ेगा। इस ब्रांच पे क्या करंट फ्लो हो रहा है, इस ब्रांच पे क्या करंट फ्लो हो रहा है, इस ब्रांच पे करंट क्या फ्लो हो रहा है, इस ब्रांच पे करंट क्या, इस ब्रांच में करंट क्या, इस ब्रांच में करंट। तो अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे, और अगर बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे तो सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वो डिफिकल्टी जो बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं, उस डिफिकल्टी को रिजॉल्व करने के लिए मेश एनालिसिस बनाया गया। समझ में आ गया क्यों करते हैं मेश एनालिसिस? यहाँ पे करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है। ओके चलिए अभी हम इसमें केवीएल अप्लाई करते हैं। सेम हमें R2 पे देखना पड़ेगा। R2 पे डायरेक्शन क्या होगा करंट का? R2 पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा? हमारे ऊपर है ना, करंट का डायरेक्शन हम कोई से भी मान सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन ये है, बैकवर्ड है, तो वैल्यू कितना होगा? I1 minus I3। ओके लेकिन कोई कह रहा है नहीं मुझे ये डायरेक्शन नहीं माननी, मुझे ये डायरेक्शन माननी। अगर ये डायरेक्शन है तो करंट कितना होगा? I3 minus I1। सिमिलरली इस ब्रांच में भी यही होगा। अगर मैं इसको फॉरवर्ड मानूंगा तो कितना करंट होगा? I2 minus I3। I2 minus I3। अगर मैं इसको फॉरवर्ड मानूंगा तो कितना करंट होगा? 3 minus I2। इस ब्रांच में करंट कितना होगा? I3। इस ब्रांच में करंट कितना होगा? I2। सभी को क्लियर है अभी? तो अगर देखो अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पे, तो अगर कोई जो है डायरेक्शन अगर इसको बैकवर्ड एज्यूम कर रहा है, इस ब्रांच में करंट बैकवर्ड एज्यूम कर रहा है, तो ये वाला पोलैरिटी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। बराबर है? अगर इस ब्रांच में करंट डाउनवर्ड एज्यूम कर रहा है तो ये वाला जो पोलैरिटी है ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके यहां पे समझ में आ गया? चलो अभी अगर इस ब्रांच की बात करें, अगर इस लूप की बात करें, इस लूप में अगर किसी ने डायरेक्शन अपवर्ड एज्यूम किया है तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। अगर डायरेक्शन करंट का बैकवर्ड एज्यूम किया तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसमें तो डाउनवर्ड ही है करंट, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये प्लस और ये माइनस होगा। सिमिलरली अगर इसमें फॉरवर्ड एज्यूम करोगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसमें अगर फॉरवर्ड एज्यूम करोगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। समझा क्या? समझ में आया? यस सर। ओके अब बहुत आसान है, अब तो बस केवीएल लगाना है। देखो यहाँ पे केवीएल लगाए। चलो मेश वन में देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से
लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल प्लस V1, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल माइनस R1 इंटू करंट का वैल्यू कितना है डाउनवर्ड, एवरीवन स्पीक इट नाउ, ओके। अभी देखो ये मिल गया R2 इंटू सॉरी R1 इंटू I1 माइनस I2, R2 इंटू कितना आ जाएगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल माइनस R2 इंटू I1 माइनस I3, I1 माइनस I3 इक्वल टू 0। सिमिलरली चलो सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके हमने इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लेंगे, वो तो ठीक है, आसान काम, छोड़ दो। नेक्स्ट केवीएल ऑन मेश 2, चलिए अभी हम खुद से लिखते हैं। अभी चलो मुझे कौन बताएगा, क्लॉकवाइज चलते हैं। I2 माइनस I1, ओके, वोल्टेज लगाना है ना, वोल्टेज कितना होगा R2 इंटू I2 माइनस I1, और वैल्यू क्या होगा माइनस, हाई पोटेंशियल से लो माइनस माइनस हाई से लो में जा रहे हैं, तो अगर हमने अपवर्ड माना है करंट तो क्या होगा वैल्यू I2 माइनस I1, I2 माइनस I1, ओके। नेक्स्ट प्लस V2 माइनस R3 इंटू I2 माइनस R4 इंटू I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। ओके चलो यहाँ से स्टार्ट करो क्लॉकवाइज। V3 because we are going from low potential to high potential plus V3 minus R2. I3 minus I1, I3 minus I1 negative R3, R3 I3 minus I2 और I3 minus I2 और negative negative R3, R5 I3 I3 equal to 0। is equal to 0.